slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. कलाकार है उतराव के जी, गाजीपुर जिला के जी जी और बहुत अच्छे कला भी दिखाते हैं जी। और शाम को 3 बजे से 5 बजे ले प्रवचन होगा। अच्छा, तो यहाँ पे रामलीला भी है और प्रवचन का भी व्यवस्था किया जा रहा है। जी। तो बाबा इतना सब कुछ। और 29 तारीख को बुल्लू मस्ताना जी का भी रहा है और सुबेदार चरण जी का भी रहा है। अच्छा, 29 तारीख को बिरहा का भी कार्यक्रम रखा गया है। जी, सुबेदार यादव जी हैं और बुल्लू मस्ताना। बिरहा के बिग गंगा के विजेता बिरहा केसरी भाई बुल्लू मस्ताना जी का और बिरहा के सुपरस्टार सम्राट गायक आदरणीय श्री सुबेदार यादव जी का बिरहा का कार्यक्रम भी रखा गया है। भक्ति भाव का भी, रामलीला का भी और गायन का भी। तो आप लोग जरूर आइएगा इस यज्ञ में और आकर के यहाँ पे यज्ञ का पूजा करिएगा और कार्यक्रम का भी मजा लीजिएगा। लेकिन महाराज हम ये जानना चाहेंगे कि आपका यह मूर्ति जो बनवा रहे हैं, तो यह मूर्ति कितने फीट की है? बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही है, लेकिन कितने फीट की मूर्ति है ये देखिए, ये 17 फीट 17.5 फीट की है जी। 17.5 फीट का काली माता का है। अच्छा। 17.5 फीट का दुर्गा माता जी का है जी। और 6 फीट की परी है। अच्छा अच्छा। तो इतनी बड़ी मूर्ति बनाने का उद्देश्य क्या है महाराज जी आपका? हम आप लोग का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है जी। माता जी ने बचपन में संग पकड़ ली जी। और हमारे गांव सभा के लोग, हमारे हर कास्ट के लोग, मोतीरा, हथुई, नागपुर के लोग हमको बहुत मान सम्मान इज्जत देते हैं। और अपनी गांव के काली माता का सावन के पूर्णवासी को मैं पूजा कराता हूँ जी। और बाकी मैं काशीदास बाबा का दूर दूर जाके पूजा कराता हूँ जी। अब अचानक माता जी का दिल आ गया जी।
हमने काम शुरू कर दिया। जनता का सहयोग है, भाई गांव के लोग सहयोग करते हैं। अच्छा, तो यह मूर्ति बनाने में सिर्फ आप अपने पैसे से बनवा रहे हैं या पूरे गांव समाज के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं? ना पूरे 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 हर जगह के लोग। अच्छा, हर जगह के लोग इसमें आपका सहयोग कर रहे हैं, तब आप इसको बनवा पा रहे हैं ना। और मैं काशीदास बाबा का पूजा कराने जाता हूँ तो वहाँ भी जो दक्षिणा मिल जाता है, चढ़ावा मिलता है, वो सब ले आकर मैं माता जी को माता जी में लगा। अच्छा। और ये जो जमीन है यहाँ पे जो मूर्ति बन रहा है, सारी जमीन जो है, इतनी सारी जमीन है, तो ये कितने जमीन में बनवा रहे हैं मंदिर आप? 5 मंडा में जो मंदिर बन रहा है, बाकी ये जमीन मेरा ही है, सब अपना ही। तो ये क्या सरकारी जमीन है और बाकी सब सरकारी जमीन है कि सब आपकी जमीन है? नहीं, सब मेरा है। सब आपकी पर्सनल चकआउट है? जी, चक का है। जी, चक का है। इसमें सरकारी जमीन थोड़ा भी नहीं है? सरकारी नहीं जी। तो देख, आप लोग समझ सकते हैं कि बाबा ने कितना बड़ा त्याग किया है कि 5 मंडे जमीन इस मंदिर के नाम पे इन्होंने अपना दे दिया है, और इसमें अपने मेहनत करके, लोगों का सहयोग लेकर के, ग्राम सभा का सहयोग लेकर के, पूरे क्षेत्र का सहयोग लेकर के, और इतनी बड़ी मूर्ति बनवा रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, जो हमें नहीं लगता कि गाजीपुर, बलिया या पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार में होगा। अगर होगा तो हम एक बार इनसे ही जानते हैं कि इस टाइप की मूर्ति कहीं और है या नहीं है। महाराज जी, थोड़ा इधर आइए, हमें जरा ये बताइए बाबा कि जो ये मूर्ति बनवाए है, इतनी बड़ी मूर्ति है, बहुत विशाल, 17.5 फुट बता रहे हैं आप, तो इस टाइप की मूर्ति कहीं और है कि नहीं? इस प्रकार का मूर्ति हमारे गुरु जी हैं जी, श्री कृष्णा जी महाराज जी, और बांस बरेली में है। बरेली तो सिंगल मूर्ति काली जी का जी, इतना लंबा गुरु जी ने बनाए हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं जी, और बाकी अपने क्षेत्र में मंगरौली में शंकर जी की मूर्ति है जी, और लखना पार में श्री हनुमान जी का मूर्ति है जी। और माता जी का, काली जी, दुर्गा जी का एक साथ मूर्ति कहीं नहीं। अच्छा, काली जी, दुर्गा जी की मूर्ति एक साथ खड़ी कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। जो आप गुरु जी बता रहे हैं रायबरेली में, वो काली जी का सिंगल बना है। अच्छा, सिंगल मूर्ति काली जी की है, यानी कि अभी तक कहीं आपने ये दुर्गा जी और काली जी को एक साथ इतनी बड़ी भव्य मूर्ति अभी तक शायद आप लोग नहीं देखे होंगे। तो इसलिए हमने बोला कि ऐतिहासिक स्थान होने जा रहा है, जो बलिया जिला के रफड़ा क्षेत्र में मोतीरा गांव, ग्राम सभा नागपुर में ये बन रही है मूर्ति। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी यहाँ पर आइए और आकर एक बार काली जी का और दुर्गा जी का दर्शन करिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। पुजारी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस मूर्ति को और इस मंदिर को बनवाने में लगभग कितना खर्च हो रहा होगा आपका? वो तो अभी हम गिनती नहीं गिने हैं। लगभग मोटा मोटी भक्त लोग आते हैं, देते हैं और काम शुरू है, साल भर हो गया। अच्छा। और 22 से 29 ले प्रोग्राम होगा। जी, और एक और खुशखबरी है जी, कि 31 जनवरी को यहाँ 51 फीट के हनुमान जी पर हाथ लग जाए। अच्छा, इसके बाद 51 फीट का हनुमान जी बनवाएंगे? बनेंगे। जैसे यज्ञ खत्म होगा उसके बाद आप तुरंत हाथ लग जाएगा। जी, जी। अच्छा बाबा, एक चीज़ और बताइए, आप इस लाइन में कब से आए और कितने दिन से पूजा पाठ करवा रहे हैं? अब इसे हम 12 साल का उम्र था तब से अपने ही गांव में एक कुल देवी हैं जिनको श्री पाह के देई माई के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनको चैत के पूर्णिमा को पूरे गांव मोतीरा, हथुई और मियाँ का बगीचा, ये सब कोटवारी के माता बहन सब इकट्ठा होते हैं और वहाँ सावन के चैत के पूर्णिमा के दिन पूजा होता है और हम पूजा कराते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमने पूजा पाठ में दिल लग गया ना, तो पहले हम ट्रक चलाते थे। अच्छा, पहले आप ट्रक ड्राइवर थे? जी। और हमारे माता पिता जी हैं, माता जी स्वर्गवास हो गई हैं। हम अकेले पहले प्रणाम करते हैं हम मोतीरा ग्राम सभा के, मोतीरा के ग्रामवासियों को, जिन्होंने हमें आज से 5-6 वर्ष पहले जो मोतीरा में शंकर जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और वहाँ के लोग हमें मान सम्मान इज्जत दिए और गए लिया के हमके और पूजा कराए, वहाँ जग भी कराए। और तब से हमारे गांव के सभी हर कास्ट के लोग, हर माता बहन भाई हमको बहुत प्यार दुलार भी करते हैं और इस मंदिर में सहयोग भी किए हैं। और सावन के पूर्णमासी के हम काली जी के पूजा कराते हैं और अपने गांव में भी काशीदास बाबा का पूजा कराते हैं। बाकी हम बिहार, गाजीपुर, बनारस, देवरिया तक जाते हैं पूजा कराने के लिए। जी, जी। तो ये रहे सुरेश यादव पंथी जी महाराज,
जो इस भव्य मंदिर को बनवा रहे हैं और 12 साल की उम्र से ये पूजा पाठ करते हैं और पूजा के क्षेत्र में हैं। और ऐसे चलते चलते इन्होंने देखिए इतनी बड़ा भव्य मंदिर बनवा दिया जो बलिया जिला के इतिहास में प्रथम स्थान है। अभी तक बता रहे हैं कि और हमने भी नहीं देखा है, शायद आप लोग भी नहीं देखा होगा, कि इतनी बड़ी भव्य मूर्ति जो एक साथ काली जी और दुर्गा जी की मूर्ति है, शायद कहीं नहीं है। अगर होगा तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन बलिया के इतिहास में तो पहली बार है कि इस टाइप की मूर्ति बन रही हो और यह काफ़ी भव्य स्थान होने वाला है। बहुत जल्द ऐसे यहाँ पे यज्ञ होगा। यज्ञ होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे लोग आना जाना चालू कर देंगे और एक आस्था का केंद्र बन जाएगा। यहाँ पे लोग आएंगे, पूजा पाठ करेंगे और 10 मिनट आराम करेंगे। हम चाहेंगे कि गाजीपुर बलिया के जितने भाई यूट्यूबर्स भाई हैं लोग यहाँ पर आएँ और इस मंदिर का, इस ऐतिहासिक मंदिर को आकर के कवर करके और लोगों के बीच में रखें कि इतना शानदार मंदिर अगर हमारे बलिया जिला में और रफड़ा में बन रहा है तो हम लोग का फर्ज बनता है हमारे आकर के इस भव्य मंदिर का उजागर करें और लोगों के बीच में रखें ताकि लोग यहाँ पे आना जाना शुरू करें और यज्ञ में भी लोग शामिल हो सके। और यहाँ पे देखिए काम चल रहा है इस मंदिर में। ये भाई पेंट कर रहे हैं। भैया हम आपसे जानेंगे कि आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम राम सुमेर भारद्वाज है। रामलाल पीपरी, पोस्ट दुधिया, जिला गाजीपुर का निवासी हूँ मैं। अच्छा, गाजीपुर निवासी हैं आप। तो कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे पेंट का? यहाँ हमको लगभग 20 दिन हो गया पेंट का काम करते हुए। अच्छा, 20 दिन से पेंटिंग का काम कर रहे हैं जी। तो आप अकेले पेंटिंग कर रहे हैं, कोई और साथ में आपके? नहीं, मैं हूँ और मेरे साथी बबन चौहान जी हैं, पासवान जी। जी जी जी, दोनों आदमी मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे काम करने पे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है और बढ़िया स्थान भी है। हम लोग को बहुत प्यार दुलार मिलता है महाराज जी के द्वारा। जी जी। तो अभी तक आप लोगों ने ऐसी मूर्ति कभी देखा था कि नहीं देखा था? जी, हम लोग तो अपने जीवन में बहुत देखे हैं। अच्छा, आप लोग बहुत देखे हैं। जी, आप लोग को यही काम है, मूर्ति को ही जी, पेंटिंग करते हैं? हम लोग सासाराम बिहार में करीब 10 वर्षों से काम किए हैं वहाँ पर। अच्छा, तो आप बता सकते हैं, यानी कि विद्वत बता पाएंगे कि इस टाइप की मूर्ति और कहाँ कहाँ आपने देखा है? यहाँ पर काली जी और दुर्गा जी की काली जी और दुर्गा जी की एक साथ यहाँ पर हमारे ध्यान में, यहाँ गाजीपुर बलिया में यही एक स्थान है जो देखने को मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं। अच्छा, बाकी कहीं नहीं है। मतलब कहाँ आपने देखा? इससे बाहर, गाजीपुर बलिया से बाहर भी कहाँ कहीं देखा है आपने? जी। कहाँ पे? सासाराम में। अच्छा, सासाराम बिहार में इस टाइप की मूर्ति है जी। एक साथ काली जी और दुर्गा जी की बनी है। अच्छा अच्छा, तो ये मिस्त्री भाई बता रहे हैं कि सासाराम बिहार में इस टाइप की एक मूर्ति है, लेकिन गाजीपुर बलिया में अभी ऐसी मूर्ति नहीं है ना जी। तो यहाँ पे काम करने के बाद जैसे मंदिर पे आप लोग काम करते हैं तो आप लोग को पैसा समय से मिल जाता है? कोई जी, दिक्कत नहीं होता पैसे में ना? पैसे में कोई दिक्कत नहीं होती है और टाइम से बिना कहे हम लोग महाराज जी हम लोग को देते हैं पैसा। अच्छा, खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है आप जी लोगों का? जी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं कोई होगा? परेशानी नहीं है कि किस प्रकार की दिक्कत। जी जी, तो ये बड़ा अच्छी बात है कि एक मंदिर पर लोग काम कर रहे हैं, उनको समय से पैसा मिल जाता है। नहीं तो लोग अपने घर का काम करा करके भी बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, और आप जाइए 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद लोग घूमते रहते हैं, फिर भी उनको पैसा नहीं मिल पाता है। तो ये महाराज जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इन लोगों से काम करा कर समय से पैसा देते हैं और इनको खुश रखे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। एक और भाई हैं जो पेंट कर रहे हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इनका भी परिचय, कि इनका नाम क्या है। भैया आपका नाम क्या है? हमारा बबन पासवान नाम है, उत्तराव गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, आप उत्तराव के रहने वाले हैं जी। और ललपीपरी का जो है राम सुमेर भाई जी, हमको बुला करके लाए और पेंटिंग का काम ये दुर्गा माता काली माता जी करवाए हैं। दोनों मिलकर इसको हम लोग पेंट किए। अभी तो ये काम चल ही रहा, आज खत्म हो जाएगा, है ना। अच्छा, आज खत्म हो जाएगा पेंटिंग का काम। तो आपने कभी ऐसा मूर्ति का पेंटिंग इससे पहले किया कि नहीं किया है? इतना बड़ी मूर्तियाँ हमने कभी नहीं किया है अपने उत्तर प्रदेश में। अच्छा, और ऐसी मूर्तियाँ कहीं भी नहीं है। हाँ, बस ये बिहार में है एक मूर्ति काली माँ दुर्गा माँ को। आपने देखा है? हाँ, अच्छा अच्छा हम लोग खुद वहाँ काम किए भी है, जी। मगर ऐसी मूर्तियाँ और कहीं नहीं है। ऐसे हनुमान जी का मूर्तियाँ है, इधर गोविंदपुर में है। हाँ, गोविंदपुर में शंकर जी की मूर्ति है और इधर दादर में जो हनुमान जी का है। हनुमान जी की मूर्ति है, सिकंदरपुर के बगल में हाँ, है। उसके बाद बाकी इधर कोई इतनी बड़ी मूर्ति नहीं है। दुर्गा और काली का मूर्ति कहीं नहीं है। दुर्गा और काली का मूर्ति एक साथ कहीं नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर लोग यही कह रहे हैं कि गाजीपुर और बलिया में इस टाइप की मूर्ति दुर्गा जी और काली जी की एक साथ मूर्ति कहीं नहीं है।
इसलिए हम इस मूर्ति को और इस मंदिर को ऐतिहासिक मंदिर बता रहे हैं बलिया जिला के लिए। तो आप लोग, हम चाहेंगे कि आप जितने साथी हैं लोग आइए यहाँ पे वीडियो बनाइए, वीडियो बना करके और सुरेश महाराज जी पंथी जी का लगे कि हमने इतना मेहनत किया है और मेहनत करने के बाद लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको अच्छा लगेगा। और इस टाइप का कदम उठाना सबके बस की बात नहीं है, इन्होंने कदम उठाया है तो हम लोग का फर्ज बनता है कि इनका हौसला बढ़ाएं और इनको और आगे तक कुछ करने का क्षेत्र के लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, आस्था के क्षेत्र में अपना एक बड़ा नाम करें। कम महाराज जी।